there is a centralized admission desk, or even at the each ward level, nurse can also directly entertain the admissions. So when a patient goes to the doctor in the OPD, so there, if a doctor decides that this patient needs to be admitted, then a request will be raised here advice. So that advice gets reflected in the nurse desk, the admission desk. So there it will be accepted. So admission acceptance can happen in the IPD related nurse desk. And then there is also a process of single window admission desk where the entire process can be directly done there also. And here you can manage all the admitted patients, their movements also, transfers from one ward to another ward. So those management also can be done in the single window admission. Right. Right. Absolutely, sir. See, we are facilitating a system where the process can be initiated with an advice in the offline also. Suppose a doctor is doing some advice through offline and they directly approach the admission desk, then they should be able to do it. So that's how it operates. It's not like we are creating a new system where they will directly admit them. So we are not changing any procedure. It will be as it is. However, system is accommodating at various levels where it can be initiated. That is checked. Yes, sir. It will run around. There's no, even for OPD also, we can create the time limits, we can configure. If you want it to run around the clock, so that also can be done. So for IPD, it can be done. It is already running. It is not. Right. We will explain, sir, how at the time of admission. I'm just trying to give an overview what all features we are going to cover so that you will be able to connect each point what comes next. Then there is also a procedure of doing the registration or the admission for the newborn baby also, because newborn baby might happen, that event happen during the admission stage of the patient. Okay. So then how do we accommodate the admission of the newborn baby one? So that also is available here. Then transfer of the admitted patient from, it may be one bed to another bed, one ward to another bed, or it may be to another ward altogether. So all those things can be done here. Then if there is any error about the admission, if anything to be cancelled, the cancellation feature is also available. Final discharge process will be there. Discharge cancellation. Suppose we have done discharge, but we might require to readmit them, not as a new event, but the same event we want to continue. So discharge cancellation process also is available. Then whatever cards that are generated for the admission or discharge, that also can be reprinted. Normally those prints come when the event happens, but if you want it to be reprinted, so that also can be done. Then we have reports. We have just started with few reports, but you will definitely require many reports. So whatever formats you require, please contact to us with specific formats. Then we will accommodate all the reports, because whatever information we are capturing, everything comes in the form of report. So there should not be any bar or restrictions for the report requirements. Primarily, we started with the admitted patient listing, then category-wise admissions. Category in the sense here the patient category, whether employee or family members or pensioners. So such kind of categorization now we can do that. Disease-wise admissions also, if you require that also we can do. Ward-wise admission listing, that also we can do. Then admission acceptance, cancelled, not registered, not reported, daily discharge reports. So those reports are available for now, but we can enable many more reports. Then we have a dashboard which we can show you at a glance what is the status of all the bed availability. Then we will show you in the dashboard how these things will appear. Next. These are IPD related process. Maximization. So in IPD, broadly, there are two windows. One is the nurse desk and the another is the doctor desk. Some processes can be done at the nurse level, some can be done at the doctor level. The patient listing, all those patients
who have been accepted will come under the patient listing. Those patients who are to be accepted, that also will come. The status wise also we can do the listing. And the patient, when we select the patient, it will show the dashboard also, where we can check many processes. Then the admission acceptance is another process. Vital recording, doctor's call book, input output, intake outtake chart, examinations, service procedure request to be raised, investigations. If you want investigations also to be raised by a nurse level, that also can be done. If you want only to have an access for viewing, not for initiating, that also can be done. So nurse can do all these activities. Sample collection anyway, nurses only will do. Chart entry, chart view, admission transfers, print levels. These are the functionalities that are available for the nurse desk. Then for the doctors, more or less same features, but the additional features will be there for the doctors. The patient listing, patient dashboard. So these are all common. For the drugs, as far as drugs are concerned, doctor will initiate the drugs. Drug administration will happen in the nurse desk. Then the investigations request can be raised by the doctor, and he can also see the investigations that are already reports are available. Then examination, complaints, history, diagnosis, all those details doctors can enter the details during their visits. If any cross consultations are required, those requests also can be raised here. Drug allergy related information can be fed so that at the time of drug administration, nurses will be able to see those details. Then OT request can be raised here. However, OT module will come shortly after some time. So that time, this interlinkage of OT request also will happen with the OT module. Discharge request also can be raised here. Then apart from that, doctor will be able to see any requests that are come for consultations, cross consultation. They can also see their inbox and see what all requests have come. Accordingly, their visits can be planned. Whatever calls that have been received, doctors also can acknowledge. Yes. Yes, sir. The entire electronic medical record will be tagged with the patient cases, so they can see all the records that are available. Previous investigations, history information, everything can be seen. Yes. So whatever we do in the OPD, everything gets attached to EMR. So that EMR will be there for all further process, including OPD, IPD. That is an additional requirement, sir. If it is required, we will try to do it. Right. So yes, sir. It is a kind of requirement. So if it is a requirement, we will do. Technically, not. We will try to. चाहे तो ऐसा भी कर देते हैं. इसको ऐसा कर सकते हैं कि हम आपको जितने भी एपिसोड्स हुआ वो एपिसोड्स दिखा देंगे. उसमें से कौन सा एपिसोड का इंफॉर्मेशन आप फच करना चाह रहे हैं वो भी दे देते हैं. दैट विल बी मच मोर इजी. लास्ट विजिट जो है बहुत ही नॉट रेलेवेंट हो सकता है यहाँ पे एडमिशन के लिए. वो भी कर सकते हैं सर. लेकिन ये नया रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, करें. So now let us come to the actual demonstration. We are doing the demonstration on a live basis. This production environment. तो इसमें NRCH का ही इस डोमेन से हम चेक कर रहे हैं. यहाँ पे एडमिन से हमने लॉगिन किया तो ऊपर हमारा जो मॉड्यूल्स है वो सारे लिस्टेड है. तो इसमें आज हम सिर्फ ADT और IPD से रिलेटेड मॉड्यूल लेते हैं. Now let us come to the ADT first. Rajnikant, just go to the menu page. Rajnikant, is it getting recorded? Yes, sir, we are recording. Okay. So we will also share the recording of the session so that at your leisure time it can be seen. Further trainings also we will do because this is only a kind of orientation. The hand-holding support, everything will be done through our teams. Krishna Gopal is there.
So he will do all the support required in wards. पहले हम ये एडमिशन का एडवाइस जो है डॉक्टर की तरफ से कैसा राइज होगा वहां से स्टार्ट कर लेते हैं. रजनीकांत, shall we start with the admission advice in the OPD days? So when the patient normally comes to the OPD, normal RX page that we open, there is a one tab for the admission advice. तो एडमिशन एडवाइस को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वहां पे आप जो बोल रहे सर बेड स्टेटस का भी चेक करना चाहिए, तो वो भी इसमें है. जैसे एक ओवरव्यू हमने बताया था, एक्चुअल प्रोसेस तो अभी स्टार्ट हो रहा है. तो पहले एडमिशन का एडवाइस कहाँ से स्टार्ट होगा? एक डॉक्टर के पास जब आ जाएगा ओपीडी में, वहां से रिक्वेस्ट राइज हो सकती है, एडवाइस राइज हो सकती है. तो ये आरएक्स का टेम्पलेट है. यहाँ पे जो पेशेंट का केस ओपन किया, यहाँ पे हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बगल में एडमिशन एडवाइस का एक टैब है, उसको क्लिक करना है. तो यहाँ पे इस पेशेंट के रिलेटेड डिपार्टमेंट जो भी है वो सब चीज ऑटोमेटिकली आ जाता. यहाँ पे सिर्फ हमको वार्ड सेलेक्ट करना है. वार्ड यहाँ पे सारे हमने कॉन्फ़िगर कर चुके हैं. इस हॉस्पिटल के रिलेटेड जो भी वार्ड्स है वो सब इंफॉर्मेशन मिला. कुछ वार्ड्स का इंफॉर्मेशन हमको मिला नहीं, तो इसलिए जैसे कोविड के वार्ड्स, उसका इंफॉर्मेशन मिला नहीं, वो भी मिल जाएगा तो आप कंप्लीट कर लेंगे. बट मेजॉरिटी वार्ड्स हैव बीन ऑलरेडी डन. तो हमने वार्ड 2 सेलेक्ट की यहाँ पे. उसके रिलेटेड बेड स्टेटस भी डॉक्टर को मालूम होना चाहिए, सर पूछ रहे थे. तो बेड स्टेटस अगर सेलेक्ट करेंगे तो दैट विल शो अवेलेबिलिटी. राइट नाउ वी हैव नॉट एडमिटेड एनी पेशेंट्स. एग्जिस्टिंग पेशेंट जो भी है वो एडमिट है कि इसलिए सारे अवेलेबल दिख रहे हैं यहाँ पे. अदरवाइज जो ऑक्यूपाइड है वो ऑक्यूपाइड, बाकी वैकेंसीज यहाँ पे दिखे. उसके अकॉर्डिंगली अगर वार्ड चेंज करना है तो वो डॉक्टर यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं. हाउएवर दिस इज ओनली एन एडवाइस. सो एक्चुअल एडमिशन विल हैपन एट द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस. तो जब वहां पे डेस्क पे जाएंगे वार्ड के पास, उसके सिचुएशन के हिसाब से एक्सेप्टेंस होगी. नथिंग एल्स टू बी फिल्ड हियर. यहाँ पे रिमार्क्स फिल करना है तो फिल कर सकते हैं. अदरवाइज वी ओनली नीड टू सेलेक्ट द वार्ड एंड देन सेव इट. सर वही है, जब ये एक्सेप्टेंस में जाएंगे वहां पे यही दिखेगा कि ये एडमिशन के लिए एडवाइस हुआ है. ये एडमिशन हुआ नहीं, यहाँ पे हमने सिर्फ चेक किया स्टेटस. यहाँ पे सिर्फ हमने एडमिशन का एडवाइस रेज किया है. आगे प्रोसेस भी दिखा देंगे. नाउ लेट अस कम टू रजनीकांत, इंक्वायरी में जाओ एक बार. इंक्वायरी में एक बार डैशबोर्ड भी दिखा देते हैं कि इसका कैसा व्यू होता है. How do we get login? इंक्वायरी Back up later. Because at the time of that IPD thing, they don't send an invite. Actually, at that time also, because PC and the modify was to be covered with this. And just find out. रजनीकांत, कैन यू हियर? This is used by other hospitals also. Yeah, now it is being implemented. Only for it was implemented here and now other major hospitals as well. Registering the Nalagoda Central Hospital also. That's right.
రజనీకాంత్ the not metros. ఏమైంది ఇది కనపడట్లేదు. ఎంక్వైరీలోకి వెళ్ళమంటున్నా కదా. Jaipur, those larger ones. अच्छा 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 ఓకే బెడ్ స్టేటస్ డాష్బోర్డ్ ఒకసారి So for administration, if you want to see daily position, how many wards are there, how many beds are there, how many are vacant, how many are occupied. So this status can be checked directly here. ఒకసారి bed view లోకి వెళ్ళు. Bed view కెళ్ళు. So within each ward also we can check how many are available or occupied. So that status also we can check. ఒకసారి మళ్ళీ మెనూలోకి వచ్చి హాస్పిటల్ వైజ్ స్టాటిస్టిక్స్ లో select the NRCH. ये सारे डैशबोर्ड्स ऑलरेडी चल रहे हैं मैडम. इसमें नॉट ओनली OPD बहुत सारे फीचर्स भी यहाँ चेक कर सकते हैं. नॉर्थ एंड वेस्ट. So these are the statistics about the hospital. So total OPDs that are done today 418 emergency registrations, then 264 prescriptions have been done. If any MLC cases are there, that also can be done. Have you tried with MLC, madam? ओके ओके आज मैंने उनको कुछ एक्टिविटी में लगाया था. कल एक बार कृष्णा कल एक बार MLC केसेस भी करवा. मैं भी आता हूँ. तो इसमें एज वाइज जेंडर वाइज प्रोफाइल से सब चीज आ जाएगा. रजनीकांत नीचे आ जाओ एक बार. एडमिशन से रिलेटेड भी कुछ स्टैटिस्टिक्स है. सारे डिपार्टमेंट वाइज कौन्स भी देख सकते हैं. So these are the admissions and discharge related statistics also we can see at a glance. I think these when we start using it fully, I think these will be important tools for making any decisions. Now let us get back to the process. Year-wise statistics. So we have raised the request from the doctor side, but however, we were just discussing that nurses also should have a flexibility to admit the patient or raise the request here, because sometimes the request can come offline or doctor is not available. Patient will directly go there and doctor consultation can happen over phone or something. So that's how we have given the flexibility for the nurses also to do the admission related initiation. सर एडमिशन एडवाइस क्लिक. तो यहाँ पे CR नंबर या नहीं तो उम्मीद के रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं. उसके बाद सेम वही वाला विंडो मैडम जो हम डॉक्टर के एडमिशन एडवाइस में देखा था. ये बेड स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं. देन यू कैन इंडिकेट हियर हु हैज एडवाइज्ड इट. सिंस ये नर्स कर रहे हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनली ले रहे हैं क्योंकि किस डॉक्टर के एडवाइस पे हमने किया और क्या रिमार्क्स के साथ हम जो भी ये मैंडेटरी है मैडम रिमार्क्स यहाँ पे, क्योंकि नर्स कुछ तो रीजन लिखेंगे कि किस सिचुएशन में ये एडमिशन उनको करना पड़ा. अभी ओपीडी के ऑफ आवर्स में भी किसी को एडमिशन करना पड़ेगा. डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहेंगे, फोन में बात करके भी कर सकते हैं. तो ये सारे सीनियर्स को एड्रेस कर रही है. ओके ओके रजनीकांत, लेट अस गो अहेड. ये हमने दोनों सिनेरियो देख लिया कि एडमिशन एडवाइस डॉक्टर की तरफ से भी राइज हो सकती है और नर्सेस की तरफ से भी हो सकती है. देन देयर इज ए विंडो कॉल्ड सिंगल विंडो एडमिशन डेस्क. Here we can manage all the cases
for lateral transfers, here we have an option. We can directly raise a request, new request. ये एक दूसरा विंडो है जहां से रिक्वेस्ट राइज कर सकते हैं, और इसी में न्यू बॉर्न बेबी एडमिशन का भी फीचर दिया है। और यहाँ पे लिस्ट जो दिख रहा है, यहाँ पे जो पेशेंट्स का एडमिशन हो चुका है वो सारे लिस्ट यहाँ पे दिखने वाला है। और यहाँ लास्ट में टी का सिंबल जो है, यहीं से डायरेक्टली हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं दूसरे डिपार्ट दूसरे वार्ड्स में। But however, we'll show you there is another way of doing all the transfers, not only from transfer of the rooms or the wards. Apart from that, for other purposes like investigation के लिए उनको बाहर भेजा गया, सर्विस एरिया के लिए भेजा गया, वो सिनेरियो भी कैसे कर सकते हैं वो हम बता देंगे, ठीक है। So let us do newborn baby admission. New admission is more or less same process that we have seen. यहाँ नीचे एक asterisk mark है कि if mother is on shareable bed then baby will share the same bed. तो जो CR नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे वो मदर ऑलरेडी एडमिटेड होंगे, तभी वो न्यूबॉर्न बेबी का एडमिशन करेगा। यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोस ऑलरेडी कंसिडर किया गया कि इट कैन बी one child or it can be two child or three children. So all those scenarios also have been taken into consideration. यहाँ पे आपको दिखेगा वो सिनेरियो कंसिडर किया नहीं सर, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। जब न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब से करेंगे तो वो वैसा सेम सी। और यहाँ पे नाम भी नहीं लेंगे। हाँ यही है सर, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बेबी नेम, बेबी ऑफ टेस्ट। Oh yes. Right. Oh. Later on they will add. फिर उम्मीद कार्ड तभी बनाएंगे जब उनका नाम बन जाएगा। आधार का कोई जरूरत नहीं सर, आधार इज नॉट मैंडेटरी फॉर वुमेन। हाँ न्यूबॉर्न बेबी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ उससे हम काम चला सकते हैं, लेकिन उसका टाइम लिमिट कुछ रखा नहीं, 2 साल रखना है, कितना रखना है, जो रीजनेबल होगा तो उसके हिसाब से उतना रखेंगे। इफ देयर इज एनी रूल वी कैन सजेस्ट अस। तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कितना जाना है मतलब इधर रूल बता देंगे नहीं तो पॉलिसी। Okay Rajmika, I think this is an exceptional thing, although this process is there, so let us go ahead। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमको भरना पड़ेगा जितने। correct। Okay, so close this one and we'll go to the regular process। हाँ सर ये एक्चुअली इसमें हमने शेयरेबल बेसिस पे भी रखा है इसको, क्योंकि हो सकता है ऐसा सिनेरियो बनेगा जैसे रिसेंटली हमने देखा कोविड के टाइम पे एक बेड में 2 को भी एडमिट करना का सिचुएशन भी बना था।
तो शेयरिंग बेसिस में भी एडमिट करने का ऑप्शन इसमें है, नहीं करते बट सर इसको फ्लेक्सिबल रहता है। राइट, तो इसका मैं पूरा फॉलोअप जो भी प्रोसेस होगा उसको एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बिल्कुल। ओके रजनीकांत, let us go ahead with the admission. Yes, sir. Again, I should Is go there back any to request available for acceptance? Yes, sir. Shall I go Okay, back so let us go to from here, new admissions? no, already we have done the okay. We raised so the far request whatever from we have OPD done, desk, sir. ये न्यू एडमिशन जो है मैडम, ये पूरा अगर कोई बाहर के पेशेंट आया है उसके पूरे डिटेल्स प्रोफाइल अगर अपडेट करना है तो वो करने के लिए प्रोसीजर है। अदरवाइज अपने पेशेंट्स नॉर्मली 99% इंटरनल होते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सारे अवेलेबल रहते हैं। तो इसलिए हम इधर वो नर्स वाला डेस्क से हम एडमिशन एडवाइस रेज करेंगे या नहीं तो डॉक्टर से कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस को ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। नाउ लेट अस गो विद द एक्सेप्टेंस प्रोसेस। आईपीडी में एक बार चलो। No, sir. Here we has to admission, sir. Okay, let us do the administration then. Complete the details. Some of things unless you do it yourself also, it comes only with the Okay. और जब एडमिशन हम कंप्लीट करेंगे ये एडमिशन कार्ड जनरेट होता है। इसके बाद ये नर्स है आईपीडी के अंदर, यहाँ पे एक्सेप्टेंस हमको करना है। तो एक्सेप्टेंस करते समय पहले डिफॉल्ट लिस्ट जो होगा वो एडमिटेड लिस्ट आएगा, तो हमको लास्ट में यहाँ पे नॉट एक्सेप्टेड जो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। नॉन एक्सेप्टेंस ये वाला जो है एक्सेप्टेंस के लिए अवेलेबल है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और लेफ्ट साइड में हमको एक्सेप्टेंस का एक विंडो है। Here they will override the advice given by the doctor also if required, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे जब एडवाइस रेज हुआ था उस टाइम पे बेड पोजीशन जो है वो चेंज भी हो सकती है बाद। सो नाउ as per availability they can choose which ward it has to be admitted for and the room number also they will select. Sir, as they asked, here is the schedule. It is there, sir. ट्रांजिट भी है सर इसमें। ओके, उसका नंबर प्लेचर नॉन एक्सेप्टेंस की जगह पे वेटिंग फॉर एक्सेप्टेंस कर लेंगे। नॉन एक्सेप्टेंस वेटिंग फॉर एक्सेप्टेंस क्या डिफरेंस है सर वेटिंग फॉर एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस में?
सर यहाँ पे उसको कोशिश करना है कि दूसरा मुझे कोशिश करो, ऐसा सिनेरियो होता ही नहीं रेलवे में। उसका एडवाइस रेंज हो गया, उस वाला वार्ड में अगर नहीं मिला उनको दूसरे वार्ड में एडमिट कर देंगे, उनको कुछ नहीं करना है। तो इसलिए वो डिफरेंस हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि वेटिंग फॉर एक्स। What is trying to say is all the beds are full. There's no waiting. रजनीकांत वो आदि just click on the bed one, हाँ सर, bed drop down, bed number, okay. bed drop down. हाँ. Sir, shall we change that to non-acceptance to waiting for acceptance? ठीक है, हाँ नहीं, ये जो है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये आप जो नोमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं वेटिंग फॉर एक्सेप्टेंस, ये वेटिंग फॉर एक्सेप्टेंस ही है। तो इसको नोमेनक्लेचर हम चेंज कर देंगे। उसके बाद आप जो सेकंड सिनेरियो बता रहे हैं उसके लिए सिंगल विंडो वाला जो हमने पहले दिखाया था वहां पे जाएंगे, देन दे कैन ऑल्टर द ट्रांसफर फ्रॉम वन वार्ड टू अनदर वार्ड। उसका दूसरा सिनेरियो में भी वो एड्रेस कर। ओके, सो लेट अस एडमिट। यहाँ पे बेड चूज कर रहा है वार्ड नंबर 2 में 3 नंबर बेड का, और इसको यहाँ पे इंडिकेट भी कर सकते हैं ये बेड शेयरेबल है कि नहीं। तो बाय डिफॉल्ट नो रहेगा क्योंकि ये एक्सेप्शनली जरूरत पड़ सकता है कभी। इसके बाद सेव करेंगे। नाउ द पेशेंट हैज बीन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। ये पेशेंट लिस्टिंग में जाएंगे तो ये अभी दिखने लग जाएगा। और एक बार ड्रॉप डाउन ऑप्शन में एक बार दिखा दो सर्विसेज में। यहाँ पे 4 सिनेरियोस है सर। ये एडमिटेड केसेस की लिस्टिंग है बाय डिफॉल्ट जो रहता है। उसके बाद परमिटेड टू गो होम, ऑन ट्रांजिट जो रहेगा, ऑन ट्रांजिट में मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए या नहीं तो सर्विस एरिया के लिए बाहर भेजा गया, ये एक्सटर्नल रेफरल हुआ, ये सारे चीजों में यहाँ पे ऑन ट्रांजिट होगा। नॉन एक्सेप्टेंस वाले अभी जो बोल रहे हैं उसका हम नाम चेंज कर देंगे कि वेटिंग फॉर एक्सेप्टेंस। तो नाउ ये जो लिस्टिंग हुआ इसमें से नर्स अगर प्रोसेस कुछ इनिशिएट करना चाह रहे हैं तो ये कोई भी पेशेंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये पेशेंट का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो इसमें एडमिशन समरी, डायग्नोसिस, मेडिकल हिस्ट्री ये सारे चीजें अवेलेबल है। बट लेकिन ये नर्स डेस्क है तो यहाँ पे नर्स को कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव विल हैपन एट द लेवल ऑफ डॉक्टर। तो पहले डॉक्टर डेस्क का ही हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आईपीडी में डॉक्टर डेस्क, नर्स डेस्क और उसके नीचे और एक ऑप्शन है ये डिस्चार्ज समरी बनाने का, वो हम बाद में फिर से कवर करेंगे। सो नाउ डॉक्टर डेस्क में हम एक पेशेंट का सेलेक्ट करेंगे। अभी एडमिशन हमने जो किया था टेस्ट डॉक्टर के नाम से। So now we have in the dashboard some of the options. Left side में कुछ options है, right side में भी options है। Okay. As per requirement ये options कहीं पे भी चालू कर सकते हैं। There is no sequence to it. As per requirement, doctors will visit and do the entry. If a doctor visits and wants to update examination related information,
डायरेक्टली लेफ्ट साइड में एग्जामिनेशन में चले जाएंगे। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली डैशबोर्ड में दिखा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे रेज करना है, तो इन्वेस्टिगेशन वाला ब्लॉक में जाएंगे, नीचे डिटेल्स क्लिक करेंगे तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। सेम वे डायग्नोसिस, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए ये डिपार्टमेंटल व्यू जो ओपीडी में है उससे थोड़ा अलग है। ये यहाँ पे डायरेक्टली डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, उस डिपार्टमेंट के नीचे जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगे वो सारे डिस्प्ले होंगे। ये इन्वेस्टिगेशन रेज करने के लिए ये विंडो है। जब डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, जैसे क्लिनिकल पैथोलॉजी है, उसके रिलेटेड सारे टेस्ट यहाँ पे दिखेंगे। इसमें सिर्फ चेक बॉक्सेस है, तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से अगर इम्प्लीमेंट इजीली करना होगा तो व्हाट वी आर रिकमेंडिंग इज दैट हर एक वार्ड में एक टैबलेट रखेंगे मैडम, तो वो बेड टू बेड मूव हो सकती है, इंफॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी कृष्णा गोपाल को बताया, हर एक वार्ड में जाके वहाँ पे नेटवर्क अवेलेबिलिटी, पीसी का अवेलेबिलिटी सब चेक करने के लिए बोला। तो मैक्सिमम वार्ड्स में कंप्यूटर अवेलेबल है, इंटरनेट भी अवेलेबल है और वाईफाई जोन में ही है सारे, तो वहाँ पे ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं वाईफाई। So this record, nothing needs to be moved, if everything to be converted into digital. Right. अभी जो हमने एकदम सही आइडिया सर। इसको हमने स्पेसिफिकेशन बनाते समय हमने इवन ट्रॉली का भी डिजाइन save time. बट लेकिन मैंने रिपोर्ट ने कहा कि लैपटॉप थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, अगर आ गया तो फिर पिक करना है व्यू के वजह से हमारे स्पेसिफिकेशंस मॉडिफाई हुआ है। बट however hospital is free to procure laptops and put it in the wards. It is absolutely fine and it's a better service. Correct. missed. Yeah, careful only because updating करना है, जैसे patient आया गया ना, Sir, it's accepted that it's a better suggestion. the same old thing will be running. That is a possible. और ये पूरा स्कोप ही बदल गया सर, अभी तो पूरा ही ओवरराइड हो गया। यस सर, मैं समझ गया। अगर आप स्पेसिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट अगर देखेंगे मैडम, सर आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करिए, राइटिंग विल बी मोर डिफिकल्ट देन टाइपिंग। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मतलब आई हैव नो रीजन टू एक्चुअली अपोज इट।
voice and I don't. एक्चुअली टाइम का एडवांटेज ये है मेरा कोई भी प्रॉब्लम जो भी इसमें जो भी टेक्स्ट फील्ड होता है वो टेक्स्ट फील्ड में हम जैसे ही एंटर करेंगे तो 40 की आ जाएगा उसमें इनबिल्ट माइक होता है एंड दैट नॉर्मली इज इफेक्टिव वी आर ऑल ऑलरेडी यूजिंग क्योंकि वॉच में इतना नॉइसी नहीं रहेगा मैडम जैसा ओपीडी में प्रॉब्लम है we can still experiment madam so but I accept sir suggestion तो अच्छा है it can be a better thing but it's all nothing in our hands हम बता दें ओके यहाँ पे जो भी पेशेंट का लिस्टिंग है उस पेशेंट के लिस्ट में तो कलर में होगा उसका मतलब कि ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो यहाँ पे डैशबोर्ड में हम जाएंगे और इसके प्रोसेस हम कर सकते हैं सो लेट अस स्टार्ट विद वन बाय वन यहाँ पे लेफ्ट साइड में डॉक्टर कॉल एक्नॉलेज जो है इसमें जो भी रिक्वेस्ट राइज हुआ नर्स डेस्क से कि इधर डॉक्टर की तरफ से या नहीं तो नर्स की तरफ से कुछ डॉक्टर्स को कॉल अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट जो आया वो एक्नॉलेज करने का ऑप्शन है फर्स्ट वाला डॉक्टर कॉल एक्नॉलेज रजनीकांत विनपड़ता Yes sir, yes sir. हाँ डॉक्टर कॉल एक्नॉलेज को Now there are no records sir actually. ओके ओके बट वी कैन शो यहाँ पे कोई कॉल्स नहीं है इसलिए ये ब्लैंक आ रहा है अदरवाइज व्हाट एवर कॉल रिक्वेस्ट हैव कम दे ऑल विल अपीयर हियर देन कंसल्टेशन इनबॉक्स Any mail sir, same. ये हर डॉक्टर का यूजर अकाउंट अलग है आप लॉगिन करेंगे तो आपके इनबॉक्स में आपको कॉल आया तो आपको यहाँ पे फ्लैश होगा कि आपके लिए इनबॉक्स में कुछ है उसका अकाउंट में आपका रखें वैसे भी सर ये जो भी है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये ऑटोमेटिक पूछ रही है जब भी कॉल रेज होता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ से आपको किस तरीके से कॉल रेज हुआ वो भी आएगा फोन किया या नहीं तो बॉय को भेजा ये सब चीजें भी यहाँ पे रिकॉर्ड होती है तो नॉर्मली वो
वो भी ऐसा किस तरीके से कम्युनिकेट किया वो भी इसके अंदर है. I think Rajnikant, maybe we can show the nurse desk जहाँ से कॉल राइज होता है. So unlike our normal demonstration, as per flow we go. यहाँ पे डिस्कशन के हिसाब से जा रहे हैं. So just bear with us. रजनीकांत नर्स डेस्क को सर చూపించు. I think this computer has some mic issue. Voice ठीक से. Just select one of the patient details and we can raise the request. डॉक्टर कॉल बुक. यहाँ पे राइट साइड में जो डॉक्टर कॉल बुक है उसमें हम सेलेक्ट करके यहाँ यूनिट सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट यूनिट. उसके बाद उनके कंसल्टेंट चूज करेंगे. उसके बाद यहाँ पे ये भी इंडिकेट कर सकते हैं ये प्रायोरिटी लो है या हाई है. उसके बाद उसका जो भी रेलेवेंट रिमार्क्स होगा वो रिमार्क्स लिखेंगे यहाँ पे. और यहाँ पे सारे फोन नंबर्स भी मैप है ताकि यहाँ से फोन करके भी उनको बुलाने के लिए डिस्प्ले कर रहे हैं. और यहाँ पे दो तरीके से इनको कॉल इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं. इधर कॉल बाय प्यून, अगर प्यून के भी इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो सब यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं. अगर फोन से कर रहे हैं तो फोन भी यहाँ पे सेलेक्ट करके, because we know that all these records are going to be legally challengeable or something like that. तो इसका sanctity रहेगा इस records का. So that's why we are trying to capture all this information. Just confirm one request here. Sir, if we Admin to admin ना कर दो. no, sir, admin will not come, sir. Just go admin to admin. No, sir, admin will not. Select the admin. Sir, in this we have not configured admin as a consultant for any department. अच्छा. If we save Okay. Amit Jain or somebody on his login only, it will show, sir. Okay. Select one of them. Okay, sir. Shall I select this Amit Jain, sir? No, save it and go ahead. तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट राइज हो गया और इसका स्टेटस भी पेंडिंग में रहेगा जब तक वहां से एक्नॉलेज करके वो अटेंड नहीं होते. इसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने का फीचर्स भी है. अभी डॉक्टर के पास वापस आ जाओ. So let us start with the other process, complaints, history, examination. ये सब ओपीडी में ऑलरेडी हैंडल किया सर, आपको फेमिलियर है. तो सिमिलर टाइप है, बस यूजर इंटरफेस थोड़ा सा अलग है इसमें. पेशेंट प्रोफाइल इज वन थिंग. इसमें कुछ रिकॉर्ड्स को, कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड के नाम से सेव कर सकते हैं. अगर डिस्चार्ज समरी हमको बनाना है, वी मे बी हैविंग 10 रिकॉर्ड्स, तो उसमें से मुझे सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स उनको डिस्चार्ज समरी में आना है, तो वो हम टैग करके यहाँ पे उसका अलग से लेबल दे सकते हैं. तो ये प्रोफाइल में होगा ताकि ये पहले से ड्यूरिंग द प्रोसेस इटसेल्फ वी कैन चूज द रिकॉर्ड्स एंड वी कैन क्लब देम and then at the time of discharge the discharge summary can be immediately, instantly it can be generated. तो यहाँ पे इसके प्रोफाइल्स को अलग अलग नाम से दे सकते हैं. तो जनरल प्रोफाइल, और इसमें ये सारे जो है फील्ड्स है, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा, जो भी फील्ड फिल किया वो सारे सेलेक्ट करने के ऑप्शंस होंगे. उसको सेलेक्ट करने के बाद देन ऑल दोस रिकॉर्ड्स, दोस डिटेल्स विल गेट क्लब्ड एंड टैग्ड विद दैट लेबल, रिकॉर्ड लेबल. एक बार कंप्लेंट्स में आ जाओ.
तो नॉर्मल सीक्वेंस में आ जाओ अभी, कंप्लेंट्स, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन। स्टॉप शेयरिंग, आई शेयर डायरेक्टली। Sir? You remove your sharing. Okay. I'll share my screen. అదెందుకు డైరెక్ట్ నర్సింగ్ డెస్క్ లోకి వెళ్ళింది? यहाँ पे डॉक्टर टेस्ट में हम अभी ये केस कर रहे थे। तो इस केस में यहाँ पे डैशबोर्ड में ये सारे व्यूज हमको अवेलेबल है, और ये लेफ्ट साइड में अभी तक हमने ये किया था। कंप्लेंट्स रिलेटेड पेज में जब आएंगे तो वी कैन इंडिकेट ऑल दिस थिंग्स। ये शेयर हुआ। तो ये कंप्लेंट्स वाला टेम्पलेट है, तो इसमें अगर पेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ फिल करना है तो ये सारे टेम्पलेट्स कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसमें बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं मैडम इसको, क्योंकि आईपीडी में जो आपके रेगुलर टैबलेट्स होंगे इसके ऑप्शंस, जो टैबलेट हम मेनली यूज करना है, इंस्टेड ऑफ डूइंग डेटा एंट्री फील्ड्स, इसको हम सेलेक्टेबल ऑप्शंस, इधर ड्रॉप डाउन ऑप्शंस हो या नहीं तो रेडियो बटन्स, मल्टी सेलेक्ट ऑप्शंस, इस टाइप के टेम्पलेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपसे हमको जितना ज़्यादा इनपुट मिलेंगे उसके हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि जैसे ये कंप्लेंट्स है इस पेज में हमको सिर्फ सेलेक्ट करना पड़ेगा। So now record is successfully saved. And history related page, your family history related information can be filled. It's a consanguineous marriage. History page also we have filled. Examination related information also can be filled here. तो इसमें ये जो भी फील्ड्स यहाँ पे दिख रहा है मैडम, इसको हम डिपार्टमेंट वाइज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दिस इज लाइक अ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। इफ यू वांट एग्जामिनेशन फॉर ईच डिपार्टमेंट टू बी डिफरेंट, so that also we can do it. हमको जो टेम्पलेट्स मिला था एनआरसीएच से, ऑलरेडी हमने टेम्पलेट्स दिया है, तो उसका आईपीडी आने के बाद हम चालू करना चाह रहे हैं, तो अभी हम इसको चालू कर सकते हैं। So during this time, if you get more inputs from your side, you will be able to do it. So randomly, I've just filled some of the information. ये डायग्नोसिस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये आईसीडी कोड या स्नोमेट सिटी कोड्स के हिसाब से हम ये कर सकते हैं। ट्रीटमेंट डिटेल्स में यहाँ पे ड्रग इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पे जो भी डॉक्टर की तरफ से फिल करेंगे, ये इंफॉर्मेशन वहाँ पे नर्स के डेस्क में दिखेगा, एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टैब के अंदर वो लोग ये जो डोसेज यहाँ पे डॉक्टर की तरफ से हो रहा है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे मॉनिटर करके। Just for example, I'm trying to do something. तो ट्रीटमेंट डिटेल्स यहाँ पे जो भी फिल करेंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो दो ड्रग्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने फिल किया। अगर कोई ड्रग एलर्जीज है पेशेंट के, वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, सो दैट दिस आल्सो गेट्स रिफ्लेक्टेड इन दी नर्स डेस्क। वहां से वो इसके हिसाब से वहां पे जो भी केयर लेना है वो ले सकते हैं। ये कंसल्टेशन में यहाँ पे
अगर कोई क्रॉस कंसल्टेशन कुछ करना है तो डॉक्टर को या यूनिट को यहाँ सेलेक्ट करके ये कंसल्टेशन इनिशिएट कर सकते हैं। और ये कंसल्टेशन लेफ्ट साइड में कंसल्टेशन इनबॉक्स जो आया है, इसके अंदर हर एक डॉक्टर को जो भी रिक्वेस्ट आया है कंसल्टेशन के लिए वो सब वहां पे दिखे। नाउ मेल सेंट सक्सेसफुली, जो भी डॉक्टर मैंने सेलेक्ट किया था उनको मेल भी चला जाता है इस पर। और ये चार्ट की इंफॉर्मेशन है, जो भी जितने भी डेट्स में एपिसोड्स में हमने इसका इंफॉर्मेशन फिल किया वो सब यहाँ पे आएगा। अगर हम ग्राफिकली इसको देखना चाह रहे हैं तो ये ग्राफ से भी देख सकते हैं, so that we can easily identify the patterns about anything. ये पैरामीटर्स के अलावा और कोई पैरामीटर्स होंगे मैडम इसका? हाँ, ये वाइटल से रिलेटेड है। अगर आप बताएंगे कि कुछ और पैरामीटर्स होंगे जिसको हम करना चाहिए। श्योर श्योर, डिपार्टमेंट वाइज हम कर सकते हैं बिल्कुल। मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए ना। कृष्णा, कैन यू कोऑर्डिनेट वो इन्फॉर्मेशन मुझे दिलवा दो। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे रेंज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने चेक किया था। तो पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी टेस्ट होगा वो सारे टेस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन से। तो इस टाइप के जो इंटरफेस होगा मैडम, उसमें सिर्फ हमको सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, तो टैबलेट से इजीली कर सकते हैं। सपोज आई एम सेलेक्टिंग लिवर फंक्शन टेस्ट, उसको मैंने सेव कर दिया। तो इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पे रिक्वेस्ट राइज हो गया। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं तो उसको भी यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पेशेंट का 19th और 20th 22nd में इतने सारे टेस्ट हुए हैं, इसका भी हम चाहे तो यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो ये भी हम ग्राफिकली चाहे तो ग्राफिकली देख सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे लिवर फंक्शन टेस्ट का हुआ है, और ये एक एक पैरामीटर के हिसाब से भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या पैटर्न रहा डिफरेंट डेट्स में, जो भी हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, ये सब चीजें हम ग्राफिकली देख सकते हैं। ये सारे नीचे पैरामीटर्स है और दिस इज द पैरामीटर टेस्ट रेंज। अगर डायरेक्टली पैरामीटर से देखना है इसको हम हाइड कर सकते हैं। इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है। ये रेस्पॉन्सिव व्यू है सर, यहाँ पे वैल्यू सर एक्चुअली वो थोड़ा सा वहाँ पे ड्रैग करने वाला ऑप्शन नहीं था, तो रेस्पॉन्सिव व्यू जो था उसको सेलेक्ट किया हमने। यहाँ पे दो टेस्ट है, इसके यूरिन रिलेटेड टेस्ट भी हुआ और ये लिवर फंक्शन टेस्ट भी हुआ। इसके डेट वाइज जो भी है ये सारे पैरामीटर्स वैल्यूज भी हम चेक कर सकते हैं। तो अभी दो मशीन हमने ये ऑलरेडी लैब मॉड्यूल से इंटीग्रेट, दो मशीन्स भी हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो डायरेक्टली वहाँ पे इवन रिजल्ट एंट्री, सैंपल प्रोसेसिंग, वो सब चीज़ भी ऑटोमेटेड है। तो बहुत शॉर्टली हम सारे मशीन्स भी इंटीग्रेट कर देंगे, तो काम काफ़ी ऑटोमेटेड भी होना चाहिए। उसके बाद ये और ये 700 वाला उसमें ज़्यादा टेस्ट होता है, वो वाला ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुका है। एक रेडियोलॉजी वाला, सॉरी न्यूरोलॉजी वाला
यूरोलॉजी से रिलेटेड एक मशीन हमने इंटीग्रेट कर दिया। हाँ यूरिन, हाँ इमरजेंसी, यस यस इमरजेंसी। हमको ये प्रायोरिटी आपकी तरफ से मिला था कि ये पहले सबसे पहले करें। तो सिमिलर वे में यहाँ पे सर्विस एरिया के इंफॉर्मेशन भी, जो भी सर्विस करना है, एक्चुअली ये दो मॉड्यूल्स ओटी और सर्विस एरिया अभी इंप्लीमेंट नहीं किया, जैसे इंप्लीमेंट कर देंगे वो प्रोसीजर्स के लिए भी यहाँ से रिक्वेस्ट डायरेक्टली रेज कर सकते हैं। दिस ओटी रिक्वेस्ट रिलेटेड। और ये डिस्चार्ज के रिक्वेस्ट यहाँ से रेज कर सकते हैं। हाय मैडम, डिस्चार्ज का मैं टेम्पलेट आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद ये कोर्स पे जो भी विजिट थी, यहाँ से मुझे क्वेश्चन था कि मतलब विजिट जब होंगे तो यहाँ पे क्या नोट्स लिखेंगे, तो नोट्स रिकॉर्ड करने के लिए भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। और ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के ऊपर हमने इसको, पहले ये ऑटोमेटेडली डेट टाइम स्टैम्प आता था, जिसको हमने अभी मैनुअल कर दिया, ताकि अगर पहले ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे तो मतलब बैक डेट से, बैक टाइम से भी इसको रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दिया गया। अगर कोई पेशेंट का डेथ होता है तो वो डेथ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो डेट ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ, मैनर, ये भी ऑप्शन आप बोलेंगे तो कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं। हाँ, डेथ सर्टिफिकेट भी यहाँ से जनरेट हो सकती है। जो यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ भी आ जाएगा। उसके बाद अगर किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं तो किसको हैंड ओवर किए, ये सारे इंफॉर्मेशन भी आप फिल कर सकते हैं। मॉर्चरी मॉड्यूल बाद में आएंगे तो उस टाइम पे ये मॉर्चरी से भी हम इंटरलिंक कर सकते हैं। एमएलसी केस हुआ तो ये पुलिस और उनको हैंड ओवर किया, वो वाला प्रोसीजर्स भी इसमें इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहे तो ये वाला हम चेक कर सकते हैं, और ये सर्टिफिकेट भी यहाँ से जनरेट हो सकती है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और ये डॉक्यूमेंट अपलोड का भी ऑप्शन है मैडम, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बाहर से कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स आए होंगे या केशीट अभी हम सडनली चालू कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड जनरेट हो गए होगा केशीट, उसको अगर अपलोड करना है तो ये सारे स्कैन करके यहाँ से हम अपलोड भी कर सकते हैं। दैट ऑल विल बी पार्ट ऑफ ईएमआर। तो ये अपलोड कर, और ये, हाँ यहाँ पे 2 MB का रखा है सर। अगर आप बोलेंगे कि इसको रिवाइज करना चाहिए वो कर सकते हैं, बट विल ट्राई एक एक एक। हाँ मतलब आप फोटो खींच के उसको इधर जीपीजी में या तो पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। हाँ, इसको आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं। हाँ, दिस इज अ गुड सजेशन। हम इसको डायरेक्टली कैप्चर करने वाला नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना मतलब ये सेंसिटिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है कोई डॉक्यूमेंट फॉर्म में, इसमें हाँ, हाँ हाँ, इसमें किया है, यहाँ पे भी करने की कोई दिक्कत
और वो डॉक्यूमेंट का टाइटल हम दे सकते हैं और डॉक्यूमेंट टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन है, एमएलसी डॉक्यूमेंट है, एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन है, पेशेंट डॉक्यूमेंट। और जो डिस्चार्ज वाला आपने बताया मैडम, हाँ ये डिस्चार्ज समरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और ये भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप खुद भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, केस टू केस बेसिस में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये डिस्चार्ज समरी में आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन के साथ रखना चाहिए, तो आप यहाँ पे ये सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका सीक्वेंस भी आप डिसाइड कर सकते हैं, इसको अप करना डाउन करना कर सकते हैं। आपको लगता है कि कंप्लेंट्स का कोई जरूरत नहीं, इसमें एंटर करने का, हिस्ट्री का जरूरत नहीं, समरी रहेगा, एग्जामिनेशन का जरूरत नहीं, डायग्नोसिस रहेगा, एलर्जीज नहीं। तो इस टाइप के आप केस टू केस भी सारी चीजें अपने आप से कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं। ट्रीटमेंट गिवन, इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन डिटेल्स रहेगा, एडमिशन, एडवाइस एंड डिस्चार्ज जरूरी है, अदर डिटेल्स की जरूरत नहीं, रेफर का जरूरत। तो ये हम सेव करेंगे तो ये इंडिविजुअल के रिलेटेड एक टेम्पलेट बन जाएगा डिस्चार्ज समरी के लिए। उतना ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम फिल करेंगे, उसके बाद ये डिस्चार्ज समरी बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चीजें हमने ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंटर किया था, वो सारा इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए डिस्चार्ज समरी में, तो आप यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। तो ये पूरा आप कॉन्फ़िगर उसी लेवल उसी टाइम पे कर सकते हैं। पहले डिस्चार्ज समरी बनाने के लिए काफी प्रोसेस हो सकती थी। अगर ये सही तरीके से सारा डेटा आ रहा है, तो एट ए ग्लांस यू कैन डायरेक्टली डिलीट और ऐड समथिंग एंड फिनिश योर प्रिपरेशन ऑफ डिस्चार्ज समरी। यहाँ हाँ वो भी है सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो डिस्चार्ज ये जो बन रही है ओनली डिस्चार्ज समरी है। डिस्चार्ज करते समय क्या प्रोसेस होगा वो मैं अलग से बता देता हूँ, क्योंकि वो आईपीडी के बाहर एडीटी वाला मॉड्यूल में आ जाएगा, मैं उसको अलग से दिखा देता हूँ। तो डिस्चार्ज समरी बनने के लिए थोड़ा सा ये टाइम लगेगा। तो मीनवाइल यहाँ पे एक एरर आया कि फॉलोअप विजिट कैन नॉट बी लेस देन द करंट डेट। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बट लेकिन हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। जो ड्रग्स हमने यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया था डॉक्टर की तरफ से, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नर्स डेस्क में से ऐसा दिखेगा, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ये ऑप्शन दे सकते, यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा ड्रग कब दिया गया, ये सारे इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। और ये सारी चीजें मैनुअली रखा है, क्योंकि पहले पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो लोग ये डेटा एंट्री खाली टाइम में कर सकते हैं, so that record also gets updated and their normal work of caregiving will not get affected. और नर्स यहाँ पे वाइटल्स भी खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारी चीजें चार्ट में अपडेट होती जाएगा। ये इनटेक आउटपुट वाला भी चार्ट है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस रिलेटेड इनटेक है, ब्लड है और कैसा दिया गया, ये सब चीज यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे है मैडम, ये पेशेंट मूवमेंट और ट्रांसफर। जब पेशेंट एक पर्टिकुलर वार्ड और बेड पे है, इसको ट्रांसफर करने के लिए या डिपार्टमेंट या वार्ड चेंज करना है, या ओनली रूम चेंज करना है, या उसके कोई सर्विस या ओटी इसके पर्पस में इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर भेजना है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शंस बदल जाए। अगर ये सर्विस एरिया ओटी से रिलेटेड ये वाले सर्विस टाइप हो सकते हैं। उसके बाद कौन एडवाइस किया, ये वार्ड के हिसाब से ये सारे डॉक्टर्स मैप है वही दिखेंगे। उसके बाद यहाँ रीजन के साथ इसको सेव कर सकते हैं। अगर सिर्फ रूम चेंज करना है इसमें,
ICU वार्ड है मेरे ख्याल से, इसकी वजह से वही आ रहा है। ये हम बेड चेंज कर दिया अभी, इस टाइप के प्रोसेस। और लीक यहाँ पे लीव अप्रूवल का एक प्रोसेस है, मैं कहता हूँ इसमें आपका ये एड्रेस हो जाएगा। अच्छा, एडमिट करते समय ही ये वाला सिचुएशन अराइज होगा, तो लेट अस सी एट द टाइम ऑफ। लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड करने का जरूरत होगा मैडम? ठीक है, इसको हम ये प्रोसेस में ले लेंगे मैडम, ये पहले नॉन एक्सेप्टेंस आ जाएगा। इसको इनेबल करेंगे मैडम, जहाँ पे एक्सेप्टेंस का विंडो जो आ रहा है वहाँ पे रिफ्यूज टू गेट एडमिटेड का ऑप्शन दे देंगे, वो रीजंस के। हाँ सर, वही मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, यही दिखा रहा हूँ सर, यहाँ पे मैं फिर से एडीटी मॉड्यूल पे आ गया। एडीटी में हमने अभी तक एडमिशन वाला पहले प्रोसेस देखा था, एडमिशन किसी को कैंसिल करना वो भी ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद पेशेंट डिस्चार्ज वाला ऑप्शन है, फाइनल डिस्चार्ज है, यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे। लेट मी कॉपी दिस ईयर नंबर। ये डिस्चार्ज वाला ऑप्शन है, यहाँ पे डिस्चार्ज टाइप में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है सर। ये नॉर्मल डिस्चार्ज है या ट्रांसफर है, ट्रांसफर टू एनी अनदर हॉस्पिटल आउटसाइड हॉस्पिटल, डेथ एक रीजन है, लामा, absconded रेफरल ऑन रिक्वेस्ट, ये ऑप्शंस अभी है। और चाहिए मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी एफआरएस के टाइम पे। हाँ हाँ, कंसेंट वाला इसमें ऑप्शन है, शायद अभी हमने आज का डेमो के लिए कॉन्फ़िगर शायद नहीं किया है, बट लेकिन ये 100% है। कंसेंट मैनेजमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस, उसमें सारे कंसेंट मैनेजमेंट होगा, उसमें एक प्रिंट होगा जो फॉर्मेट आप बोलेंगे। हाँ, टेम्पलेट्स अगर दे देंगे तो कंसेंट तो है मैडम, यहाँ पे मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट लेकिन ये एनेबल कर देंगे बाई एंड ऑफ डे टुमारो। रजनीकांत, हाँ सर। कंसेंट थिंग हैज टू बी एडेड। हाँ ओके सर, आई एम चेकिंग सर, आई विल ऐड ऑलरेडी है। तो फाइनल डिस्चार्ज में इतना ही है कि डिस्चार्ज टाइप सेलेक्ट करना है, कौन डिस्चार्ज कर रहा है, और इसके रिजल्ट्स में कुछ ऑप्शंस दिया गया, और कुछ ऑप्शंस ऐड करना है तो, और डिस्चार्ज रिमार्क्स जो भी होगा वो यहाँ पे इंडिकेट करना है। अगर कोई डायग्नोसिस यहाँ पे ऐड करके भेजना है तो
मतलब जो ड्रग्स के लिए ना, आप वहीं पे, क्योंकि पूरी बॉडी ऑल्सो स्टोरी है, वहीं पे ड्रग्स दे सकते हैं या अदरवाइज वो फार्मेसी में चले जाएंगे। है ऑप्शन तो दोनों तरफ से। क्योंकि उनका तो कोई भी स्टोर में जाके ले सकते हैं, एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड किया। तो कोई इमरजेंसी स्टोर में चला गया या ओपीडी फार्मेसी स्टोर में चला गया, वहाँ पे उनका सीआर नंबर बता दिया, तो those drugs which are new to him or her that gets reflected and they can be dispensed. और हमारी टीम तो सपोर्ट करने के लिए है यहाँ पे। तो कभी कभी क्या हो जाता है, एक्चुअली स्पेशली परसों के दिन जब हैंग हुआ था, हमने आपको ही मदद करने के लिए कुछ बीच में प्रोसेस किया था, उसकी वजह से अदरवाइज नॉर्मली हम नहीं होते। एक ही ट्रबल शूट है इसमें, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम ब्राउजर में कैरी करते हैं, क्योंकि हर बार सर्वर को हिट करके आने में आपका और ज़्यादा डिले हो सकती है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कैशिंग मेमोरी जो है वो बहुत एक्टिव रहता है, उसको कैशिंग मेमोरी क्लियर करना होता है। उसके लिए एक सेटिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे कि जब भी हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे ये जो है डिलीट टू, इसको चेक कर देंगे। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, आप ब्राउजर एक बार क्लोज करके लाएंगे, पूरा कैशिंग मेमोरी क्लियर होकर फ्रेशली ये ओपन होता है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एग्जैक्टली, वो कैशिंग की वजह से ही प्रॉब्लम आता है। मतलब इट्स नॉट करेक्ट थिंग, बट लेकिन ये कुछ चीजें ऑप्टिमाइज करने के लिए करना पड़ता है। मेरे ख्याल से we have covered everything, मैडम। So if there are any further discussion suggestions, we will take. हाँ बिल्कुल सर, ये क्योंकि एक बॉडी को इवॉल्व करना है, जैसे फार्मेसी भी शुरुआत में जैसा आया है, आज के डेट में बहुत डिफरेंस है इसमें। तो इट नीड्स टू गेट now it is ready, madam. We have already configured all the wards. We have also given the roles for all the nurses also. Doctors also we have already given. ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। सिस्टम तो ऑलरेडी हमने सर्वे किया, तुम बताओ कितने सिस्टम्स कौन सा वार्ड में नहीं है। सिस्टम आईपीडी अवेलेबल तो ओल्ड है, तो उसमें हाँ मैडम, कुछ सिस्टम मैंने खुद चेक किया था कल वार्ड नंबर 3 में, तो वहाँ सिस्टम बहुत पुराना है। तो वहाँ इवन मैं स्पीड चेक किया तो इट्स वाज हार्डली 14 एमबीपीएस। व्हाट डू देना अच्छा डिसीजन होगा। मैडम वैसे बहुत कम जगह पे है। कितने वार्ड्स में पुराने हैं, कितने वार्ड्स में पुराने पीसी है? सब में अगर कुछ मैडम इसमें स्टेटमेंट बनाया, आपको अभी शेयर कर देंगे, प्रिंटेड कॉपी मैडम को दो।
पीएचडी को मेरे ख्याल से 10 या लैपटॉप है authorization। तो अगर पीसीबी से बात करें तो वो 10 लैपटॉप का अप्रूवल भी दे सकते हैं। दो प्रॉब्लम है, एक अच्छा लैपटॉप और उसके बाद तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, तो ट्रॉली बना देंगे लोग, सिर्फ उसका रीच होना चाहिए, उसका प्रोटेक्टेड ये होना चाहिए, फेंसिंग होना चाहिए, फेंस होना चाहिए, ताकि लैपटॉप गिर ना जाए। तो ये तो वैसे भी बनाना पड़ेगा अलग से, और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये 2-3 हज़ार में भी बन जाता है, तो ये कोई बड़ा चीज है।